Hey yo, welcome back to the Mime Show, guys. This is our third episode, and today we are all in hats. That's a the theme podcast. Theme is hats, as you can clearly see. Hats and our mini Goa setup here. Yeah. Let us know in the comments how you like it. Right, this is our third video and third different setup. Let us know which one you like, and we'll move forward with that. So today we'll be talking about student entrepreneurship. Startups for college students, school students, and everything. So let's go with And that. we'll be talking about our journey and how you guys can start at a young age, at school level, college level. We'll reflect upon our own journey first of all, and then kind of guide you towards how the challenges you might have and the do's and don'ts, the basic ones that we are aware of. Yeah, so first. Nilansh, I would like to ask Nilansh a question. So, do you remember any incident from your childhood where you felt like an entrepreneur or doing something that? So I think in 9th grade or maybe 8th grade, my elder brother, he was basically selling posters, A4, A3 posters with his friend. So I was kind of his cabinet intern there. So Wingman. Wingman, Wingman. exactly. So I'd go to my classes and my friends, go and pitch them posters. We'll make them custom for our friends as well. We would, I think, charge $50 for one and 70 or 80 bucks for two. So I think we made around 1,500, 2,000 within a week or something. So that was good. Other than the fact that every single penny went into my brother's pocket. Just got a You pizza out just of it. got played, man. That's okay. It was our first journey. What about you guys? Anything? I think the oldest memory that I have is there was Monopoly money, right? So I used to sell Monopoly money to my Mausis in exchange for real money. And how did that work out for you? मतलब great profit margins, but again I did not get to keep a penny of it. मेरी मम्मी सारा ले जाती थी. I think वो तो होता ही है, मतलब any money we make as a kid that goes to our parents' हाँ pocket. फिर वो इमोशनल कर देते हैं यार कि हम तेरी स्कूलिंग करवा रहे हैं, तेरे को जब कुछ चाहिए होता है हम देते हैं. So But ठीक है, makes sense. What about you? I remember when I was in 6th or 7th grade, so we used to have a Christmas carnival in our school, Presidium, and we used to get, I get around 60 tickets, and the money that we used to get out of selling those tickets, we had to donate it to the Spurs NGO. So I remember. Please do not complete that story. You do keep all that money. अच्छा ठीक है, okay. Then go ahead. Why would you say that, Niraj? So you were saying? हाँ, so basically I was with my cousin, one of my cousins. So it was around 7:38, and I got a call. So I was not interested at all in going and selling those tickets. But then my mom said that जा ले जा अपनी बहन को ले जा, जाके बेच करा. तो मतलब I was very shy and मेरे को नहीं पता था कि मैं ऐसे किसी घर पे जाके पैसे कैसे मांग सकता हूँ. Trick or treat मांग सकते हो. हाँ तो जाके. trick or treat ठीक रहा है, but still. Shout out to my mom behind the camera. She's waving at us. Hello. हाँ तो क्या बोल रहा था मैं. हाँ तो Door फिर to हम door door to door selling. हम लोग गए, and it seemed very easy. मतलब ऐसे बस मैं जाता था वहाँ पे जाके और मैं बहुत cute सा छोटा सा I think मोटा as a था. kid, anything you go door to door selling gets sold. Yeah. हाँ until unless the uncle or auntie is really mean, so it's easy. मतलब कई बार ऐसा होता था कि हमें नहीं चाहिए टिकट, जाओ यहाँ से. मैं कहता था ठीक है भाई, रूट क्यों हो रहे हो, नहीं चाहिए तो बोल दो. Candy दे दो. भाई कुछ ही दे दो बेटा, चुप हो जाओ ना, फालतू में रूडो की जरूरत नहीं है. हाँ बट मैं ऐसे क्यूट सा छोटू सा मोटू सा बच्चा था, तो सब कहता कि अरे सबने टिकट खरीदी, कई लोगों ने 7-7 8-8 टिकट खरीदी. फिर मेरे को उस टाइम याद है कि मेरे को एक बुकलेट और मंगवानी पड़ी थी अगले दिन स्कूल से, क्योंकि मेरी 60 अलाउट हो गई थी एंड उसके बाद भी लोगों को और चाहिए थी. तो अच्छा तो लगता है यार कि ऐसे आप मतलब ऐसे खुद का ऐसे सक्सेस टाइप फील होता है कि शिट मैंने हाँ सब मतलब खरीद एक लिया. instant gratification moment होता है कि हाँ. ठीक है, self accomplishment है, छोटी सी सही, but makes you happy, right? हाँ एंड उसके बाद नीलांश और मेरे को आज भी याद नहीं कि हमने कैसे स्टार्ट किया था, हमारी क्या बात हुई थी. बट मेरे को याद है हमारी पहली मीटिंग हुई थी, हम लोग साथ में बैठे हुए थे. बट हमने डिसाइड किया जैसे सारे एंटरप्रेन्योर्स बाहर मीटिंग करते हैं, तो हम दोनों के लैपटॉप लेके गए थे चायोस.
हाँ, नहीं तो चाय मतलब पॉइंट 20 19 18 20 नहीं 20 नहीं यार 2019 का लास्ट था ये. ठीक है, 2019 के लास्ट में. सो मतलब अर्नब यूज्ड टू लिव राइट देयर द हाउस इन फ्रंट ऑफ मी. तो समथिंग गॉट टुगेदर. मतलब वी वर सिटिंग वन टाइम एंड उसकी थॉट चला अब हम भी अपना कंपनी चलाते हैं, स्टार्टअप चलाते हैं एवरीथिंग. तो व्हाट वी डिड वाज वी क्रिएटेड अ फर्स्ट स्टार्टअप ट्राई. इट वाज नहीं, so first let me tell an incident from that story. तो हम दोनों गए चाय पॉइंट पे बैठे हम लोग, हमारे घर से 5 मिनट दूर था. तो हम लोग चाय पॉइंट पे जाके ऊपर बैठे और हम दोनों ने लैपटॉप्स खोल रखे. वी वर वेयरिंग ब्लैक पोलोज. ठीक है, ब्लैक पोलोज, नीचे ब्लू जीन्स एंड वाइट स्नीकर्स. बिल्कुल मैं स्टार्टअप पॉइंट पर चाय छोटी ले रखी थी. बट हमारे फेस पे दिख रहा था कि हम बच्चे ही हैं, क्योंकि मतलब थे तो 9th 10th में ही, तो बच्चे ही लग रहे थे. हम दोनों के लैपटॉप्स खोले, हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हमारी शायद बातें थोड़ी तेज हो रही थी. तो सामने एक बंदा बैठा था, वो भी शायद से किसी का डिस्कस कर रहा था. एंड वो था ओला इलेक्ट्रिक का एम्प्लॉय था वो. तो हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि मतलब मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने यंग एज पे तुम लोग स्टार्टअप कर रहे हो और ये सब. एंड वो बात है कि हमने पहली बार मतलब ऐसे बस उस मीटिंग में हम ये मतलब मीटिंग है उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है. और हम लोग ऐसे 4-5 चीजें डिस्कस कर रहे थे. हम लोग ने मेरे लैपटॉप पर विकिपीडिया खोला होगा स्टार्टअप्स का कि क्या करना है. और उसके पे तो कुछ रैंडम ही खुला हुआ होगा खाने वाने का. तो फिर मतलब दैट गाय केम ओवर, सेड हाय गाइस. मतलब रियली आई काइंड ऑफ ओवरहर्ड यू गाइस टॉकिंग. वी थॉट ओके मतलब ईव्सड्रॉप कर रहे हो बट श्योर हम ही तेज बोल रहे थे. मतलब ही गेव अस हिज कार्ड कि मतलब एनीथिंग यू डूइंग आई विल बी इंटरेस्टेड टू पिच इन विद यू. और तब मतलब हम तो 100 रुपए के चाय पी रहे और हमें कहा वाह भाई यहाँ तो बैठ के इन्वेस्टमेंट आ गई. मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कि आज तो स्टार्टअप स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, लोग इंटरेस्ट चला है वही. तो मतलब वी वेंट बैक होम वेरी हैप्पी, ऐसे बहुत खुश से. तो फिर हमने बनाई वेबसाइट. नेक्स्ट चीज कि मतलब एवरी स्टार्टअप नीड्स अ वेबसाइट. नहीं उससे पहले थोड़ा करना क्या है. तो विदाउट फूड तो है ही, ठीक है, हमें खाना पसंद भी है. और ये कि जोमेटो स्विगी तब थोड़ा स्टार्टेड गेनिंग बिगर ट्रैक्शन इन tier 1 tier 2 cities ना. तो तब भी थोड़ा जो स्ट्रीट फूड है somewhere it's an untapped market because जैसे we are fans of our sector 50-60 market or anywhere. So वो untapped market थी. विदाउट हम स्ट्रीट फूड को डिलीवर कर देंगे, सिंपल था बिल्कुल. हाँ, हमने स्टार्ट किया हमने, और हम एकदम पूरे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स की तरह हमने पहले डिलीवरी बॉयज से बात करी, फिर हमने वो जो फूड जॉइन विस्टा प्रिंट पे कार्ड भी छपवाया था. हमने विस्टा प्रिंट पे कार्ड भी छपवाया था गाइस. तो मतलब आई थिंक जोमेटो एंड स्विगी वाला कोई जा रहा था एंड मतलब हमने उनको रोको, भैया भैया रुको पहले आप ऑर्डर दे आए क्या. तो कहते हैं ऑर्डर दिया है. फिर उनका रुको जरा बैठ के बात करते हैं. तो हमने फिर जोमेटो स्विगी दोनों वाले से पूछा कि एंड हम ये कैसे स्पॉट करते थे. तो मेरा ग्राउंड फ्लोर था एंड मेरे ग्राउंड फ्लोर से दिखता था कोई बाइक वाला जाता है, तो हम दोनों ऐसे 1-2 घंटे बाहर बैठे हुए थे. जैसे हमें कोई बाइक वाला देखता था हम भाग के जाते थे बाहर और हम उन्हें रोकते थे. हम लोग एक रात आई थिंक 11 बजे समथिंग हम रोड पे खड़े रहते 1 घंटा कि चलो कोई जोमेटो स्विगी वाला आएगा तो रोक लेंगे, बस दूसरे बंदे को पकड़ लेंगे. मार्केट रिसर्च. बेसिकली हमने सब कुछ किया. हमारा पूरा ऐसे हमारी स्टार्ट हुई. फिर हमें था कि अच्छा चलो स्टार्ट कर दिया तो उसको आगे कैसे लेके जाएं. तो हमने देखा कि अच्छा चलो सब लोग ऐप बनाते हैं बट हमें ऐप बनाना नहीं आता था. फिर मैंने उससे पहले था कि हमने जोमेटो एंड स्विगी का जो था तो ड्राइवर मार्जिन्स वर अप्रोक्सीमेटली कि 25 to 30 रुपीज जो बेस चार्ज था फॉर 21 डिलीवरीज पर डे. एंड उसके ऊपर फॉर एवरी सब्सिक्वेंट डिलीवरी दे वुड गेट लेट्स से $10 पर एक्स्ट्रा डिलीवरी ना. तो वी थॉट चलो ठीक है कि ये मॉडल समवेयर फ्लॉड सा है, हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं मॉडल. मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही मतलब जो जॉइंट्स थे जहाँ से खाना आता था वो भी डिसअपॉइंटेड थे कि वो हमारा 30% काट ले लेते हैं. प्लस डिलीवरी गाइज से भी वो लोग ऑलमोस्ट उनका 50% काट ले लेते हैं. तो कहीं ना कहीं ये था हमें कि चलो अगर हम इनको भी इनके लिए पैसा ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हम भी पैसा बना लेंगे एट द एंड ऑफ द डे. बट ऐसा ही था कि हम इतने ज़्यादा इमेच्योर थे कि हमें पता नहीं था कि कैसे काम होता है एक्चुअली में. For the next thing we did was go to a no-code website tool Wix to make our website. तो उसके लिए सबसे पहले I think हमने खाने की फोटोज ढूंढी पहले तो बहुत सारी. एक रात तो हमने बस खाने की फोटोज ही देखी. मतलब क्या गुलाब जामुन, भेलपूरी, गोलगप्पे ये सब वो सब मतलब अच्छा लगा था बहुत. फिर आई थिंक हम नेक्स्ट डे खाने भी गए थे. क्या इतना देख लिया अब खाना पड़ेगा कुछ. फिर हमने उन्हीं जॉइंट्स पे पहले खाना खाया जहाँ पे हमने उनका खाना खाया. फिर हमें जिसका अच्छा लगा हमने उनसे बात करी कि हम आपको हमारे ऐप पे लाना चाहते हैं, अभी हम काम कर रहे हैं. वेबसाइट स्टिल वर्किंग? I don't think so. मतलब I think I'm still paying for it. चलो we link that as well अगर चल रही है तो we link that. That was गली खजाना, our kind of first together venture tried out. हाँ. One more मतलब I remember one more incident from that phase.
हमें सो बेसिकली मैं और नीलांश उस टाइम पे रात को बैठते थे एंड फिर हम रात को काम करते थे, क्योंकि मेरे शायद से बोर्ड्स चल रहे थे या फिर इसके बोर्ड्स चल रहे थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। नीलांश के चल रहे होंगे फिर, जिसके एक के बोर्ड चल रहे थे तो हमारे पास शाम को टाइम नहीं मिलता था, हम रात को बैठते थे। तो हम रात को बैठे हुए थे एक दिन और 12:30 बजे हम लोग बैठे हुए थे और 12:30 बजे 11:30 बजे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, और हमारे साइट पे एक पॉपअप आया था। हमने एक फंक्शन साइट बना दी जहाँ पे तुम ऑर्डर भी कर सकते हो। और हमारे पास ये था कि ना डिलीवरी एजेंट था, ना हमने किसी से फॉर्मली बात करी। दैट वाज आवर सेकंड या थर्ड डे ऑफ वेबसाइट जब लॉन्च हुई थी, और हमें रात में वही 12:30 बजे एक ऑर्डर आया, एक ऑर्डर ही आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कुछ था ही नहीं, बोलते कि मेरी डबिंग वेबसाइट थी पूरी। हमने फिर उन्हें टेक्स्ट किया कि सॉरी सर, दिस इज स्टिल अंडर वर्क्स बट थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। एंड उस दिन भी हमें लगा कि गाइस वी हैव फाइनली मेड इट। दैट वाज आवर काइंड ऑफ फर्स्ट मार्केट टेस्टिंग। तो मतलब कंज्यूमर ट्रैक्शन हमने नोटिस किया था वहाँ पे। एक इंसान आया था, हमें पता भी नहीं था उसमें ट्रैक्शन क्या होता है, बट हाँ मतलब धीरे-धीरे as you start getting into the space, your entire lingo will change, your vocabulary will change and everything. हाँ, उसके मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जनरल बन जाती हैं कि जैसे आजकल अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ किसी से तो मैं बहुत ज्यादा स्टार्टअप टर्म का यूज करता हूँ कि अच्छा इसका टाइम कितना होगा, इसका मैं भी ईसेल की बात कर रहा कितना है, था, बर्न रेट कितना है। हाँ, मतलब tell them about that ESL launch you हाँ, had so today. basically we have started entrepreneurship cell in our school, so Bluebells Model School. So my mom is also kind of an entrepreneur, मतलब that's what she says, but so Everyone who's a hustler is an entrepreneur. yeah, It's a very broad term. broad term. It's Go. self-proclaimed. Go on. So you were saying So were you? Bluebells Model School. हाँ, so Bluebells Model School has recently today itself launched on eCell, entrepreneurship cell, and मतलब उसमें जब मैं बातें कर रहा था तो स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैं बहुत ज़्यादा, अब नॉट सेइंग दैट कि हम में से कोई बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट ऐसा है कि अब हमारी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, तो वो उनसे भी उन्हीं टर्म्स में बात होती है। तो मैं उनको कुछ समझा रहा था तो मुझे एक एक टर्म उन्हें बतानी पड़ रही थी कि अच्छा अट्रैक्शन क्या होता है, टैम क्या होता है। बट मेरे मतलब आजकल बट बच्चों में शार्क टैंक इंडिया जब से आया है, शार्क टैंक मतलब सेइंग कि शार्क टैंक इंडिया इज नॉट समथिंग दैट हाउ इन्वेस्टमेंट्स गो एंड हाउ स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्क्स। मतलब वो तो ऐसा लगता है मच्छी बाजार में तुम नेगोशिएट कर रहे हो कि अच्छा 5 करोड़ दे देना आया, 10 करोड़ दे देना आया। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप कल्चर में एक और यूथ में बहुत ज़्यादा एक पुशअप आ गया है कि नहीं अब बच्चों को भी करना है, Converge सबको कर रहे करना हैं है। It is a positive acceptance है कि ठीक है, it's also good career choice if you want to pursue that. हाँ, बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ मतलब जो मुझे बच्चों में दिखी ई-सेल के लिए जब मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं बच्चों को वाई स्टूडेंट्स वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउडी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड टाइप है कि पैसा बहुत आता है, बहुत अच्छे लोगों से मिलते हो, दिन भर घूमते हो, गाड़ियाँ Because with the onset of social media ना, तो everything reels, Twitter, TikTok is just what the fancy side of entrepreneurship है ना, कि big cars, great money, great people and everything. बाकी अश्नीर जैसे मीम्स कौन ना बनाना चाहे, तो इसलिए नहीं तो मतलब काफी फैंटेसाइज करवा दिया गया स्टार्टअप वर्ल्ड को। मतलब सोशल मीडिया ने भी काफी खराब किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी जब तुम रील्स देखते हो तो सबसे पहले ऊपर आता है डू यू वांट टू अर्न मनी और $1,500 per week, $75 by sitting at your home। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ही लोग This Ferrari, my kid just is driving this Ferrari, look at that child taking a picture of my Ferrari। तो ऐसे बातें रहते हैं बहुत, but ठीक है ना, because the main motive for anyone on posting on social media positive चीज about startup is to get their customers एक तरह But से। maybe that's how entrepreneurship in India would kickstart, you know, by showing the glamour that entrepreneurs have। कि कहीं ना कहीं लोग शायद उससे अट्रैक्ट होके, not saying that that is the right way इंडिया to go। करंटली एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है ना, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हाँ, ये भी है exactly। ये So भी है। मेरी और so कुणाल शाह was in 2-3 podcasts and मेरे को कुणाल शाह बहुत पसंद है, मैं कुणाल शाह फैन बॉय हूँ पूरा। And for you guys who do not know who's Kunal Shah is the co-founder of Cred। We'll link his podcast down हाँ, below. Kunal Shah is like your god if you are in the startup ecosystem in India, मतलब at least for me। तो कुणाल शाह का एक ऐसे उसमें एक पॉडकास्ट में वो बोलता है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं है, ये एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। एंड टू जस्ट टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ मिनट कि वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी और स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है।
So wealth driven society is basically when people in the society, मतलब like हमारी इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं या फिर हमारे सिटीजन्स हैं जो कंट्री के, उनको वेल्थ से फर्क नहीं पड़ता. एंड बाय वेल्थ आई मीन कि उनको पैसा ड्राइव नहीं करता. उनका ड्राइविंग फैक्टर पैसा नहीं, कि उनको ये नहीं कि उनको पैसा कमाना है. उनका है कि स्टेटस कमाना है. कि अब अगर मेरे को सक्सेसफुल क्यों बनना है, मेरे को इसलिए सक्सेसफुल नहीं बनना क्योंकि मेरे को सक्सेसफुल बनना है. उनको सक्सेसफुल इसलिए बनना है क्योंकि उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए. मेरे को सक्सेसफुल नहीं बनना बिकॉज़ मेरे को सक्सेसफुल नहीं बनना है. मतलब हाँ, मतलब wealth driven is where it is a work first community and society driven is where it is a fake it till you make it first society. तो ये हाँ. बहुत broad definition हो गया ये. कि तुम्हें पैसा कमाने की तुम्हें चीजें खरीदनी है ताकि तुम्हें बगल पैसे वाला की देखे. हाँ, ताकि बगल वाला Materialistic देखे. approach नहीं है towards life. It is more थोड़ा spiritual सा, अंदर की happiness चाहिए, family satisfied रहे, everything रहे. More than कि इस वाली गाड़ी में satisfied रहे, इस वाले घर में रहे. तो एंड ये इसको difference प्रूव रहता है. करने के लिए एक स्टैट है जो उसके मतलब कुनाजा के पॉडकास्ट में था कि पीपल लाइक इफ अ पर्सन हैज 100 rupees टू स्पेंड ऑन द होम डेकोर, so the 70% of that amount, I mean so approximately 70 rupees is spent on the living room area and the kitchen area, क्योंकि वही पार्ट दिखता है घर को. एंड जो बेडरूम्स है, बाथरूम्स है, उसमें सिर्फ Personal care जो की पर्सनल केयर जहाँ पे आप पर्सनली टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे सिर्फ 30% पैसा जाता है, बाकी 70% सिर्फ दिखाने में जाता है. सो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको सिर्फ स्टेटस से मतलब है. उनको मतलब ही नहीं कि वो एट द एंड ऑफ द डे क्या कमा रहे हैं. तो मतलब that was kind of our शुरू से belief कि let's not go towards the status driven side of entrepreneurship but we work first, build something you like, build something that solves a genuine problem, right? But that's not what we were when we started, right? हाँ, मतलब starting off of course you'll be attracted towards the fancy things, the fancy cars and everything, but जब once you'll fail 5-6 times, जब ठुकोगे, लोगों से बात करोगे, तब you'll realize कि हाँ ठीक है, मैं जो सोच रहा था वो initial thought सही है, लेकिन that is not the right way to go around it. But maybe मतलब मैं भी यही बोल रहा था कि that's what would give a kickstart in the Indian startup system, कि बच्चों को वही किक स्टार्ट दे रहा है ना कि भाई ठीक है पैसा कमाना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, बड़ी चीजें लेनी है, तो इसलिए मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ. सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब वो एक बार आ जाएंगे इस इकोसिस्टम में, उसके बाद देख हमारा भी यही था ना, हमें बहुत इजी लगता था. हम लोगों को याद है कि हमारे पास जब हम पहला हमारा माइंड से रिलेटेड कर रहे थे, माइंड फाइनेंस, जैसे हम एक एप्लीकेशन बना रहे थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था. हमारे पास एक पिच डेक थी. एंड हम ऐसे एक दिन मेरे मामा हैं, सो वो काफ़ी स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं, सो हम उनके पास गए, हम ऐसे स्टारबक्स में बैठे हुए थे और हमने बोला कि हम 2.5 करोड़ रुपए उठाना चाहते हैं फॉर 10%, और हमारे at a पास $3 million valuation, at a $3 million valuation, pre-revenue, प्री प्रोडक्ट. हमारे पास ना प्रोडक्ट था, हमारे पास ना कोई Fintech company without any fintech experience, tech company without any tech co-founder, मतलब 3 generalists having the same specialties. मतलब हम बहुत ज्यादा डिविएट कर चुके थे उस समय, जो हाँ. हम करंट कोर्स पे उससे तो बहुत ज्यादा. उस पे ये था कि हमें बहुत इजी लग रहा था कि अच्छा ठीक है यार, पैसा ही तो उठाना है, 2.5 करोड़ तो कोई भी दे देगा हमें जाके. बट जब तुम रिजेक्शन फील करते हो ना, और जब तुम बहुत रियलिस्टिक हो जाते हो, देन वर्क फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मतलब खुद ही आ जाती है कि चलो ठीक है, फिर खुद ही रियलाइज करते हो कि नहीं हमें It is काम very करने में मजा आ रहा है. difficult to instill honesty right into a person. मतलब that comes through life experiences somewhere. और ये हो सकता है तुम मतलब हमारी बातें सुन के रियलाइज ना करो, बट जब तुम खुद करने एक बार नहीं, मैं देखो. वही एग्जैक्टली मैं यही मैंने शायद से फर्स्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बिलीव करता हूँ. तो अगर मेरे को हो सकता है कि उस टाइम भी ऐसा तो नहीं था कि हमें किसी ने बताया नहीं था. निको मामा ने, बहुत सारे फैमिली में सबने बोला था कि यार ऐसा नहीं होता, 2.5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं होते. बट हमने कहा तुम्हें क्या पता, हम तो उठाएंगे यार. So we went to VCs, who are managing funds of over 5 billion each. मतलब they have venture funds of 5 billion, 7 billion, 6 billion ऐसे करके, and we went to them कि भाई हमें अपना कितना 500k चाहिए और अपना 3 million की वैल्यूएशन पे फॉर इतना % equity, and we are the right people to build whatever we are trying to build. एंड बेसिकली तो उन्होंने वो बोलते थे कि तुम बिल्ड तो कर लोगे, बट ये एक ऐप फर्स्ट कंपनी है, तो तुम में से किसी को ऐप बनाना आता है? हमने कहा नहीं. कोडिंग की फाइनेंस कंपनी है, किसी को फाइनेंस आता है? हमने कहा नहीं. बट उसके बाद हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया था, फिर मतलब एक यूजर इंटरफेस बना दिया था. भाई तो मतलब एडिंग मोर टू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो मतलब वी स्टम्बल्ड विद डिजाइनिंग खुद से. तो मतलब the 3 of us हमने बेसिक फिग्मा सीखा था. सत्यम picked up फिग्मा थोड़ा और सीरियसली. हम लोग सत्यम के नाउ डिजाइन UI इंटरफेसेस, सत्यम के डिजाइन वेबसाइट अच्छे से एंड एवरीथिंग, पूरे डमी फ्लोज. तो अब सत्यम टेक्स केयर ऑफ सत्यम के नाउ डिजाइन NFTs.
तो मतलब जब एक जगह हम ठोके होके तो वी टुक नोट्स, वी यूज्ड टू रिकॉर्ड आवर मीटिंग्स, ठीक है, आई यूज्ड टू जॉट डाउन पॉइंट्स ऑफ द रिजेक्शन दैट वी गॉट कि ठीक है ये वाला मैट्रिक मिसिंग है, ये नहीं हमने किया, ये इस पे वर्क ऑन करना है। फिर हमने एक एक करके वो काम डिवाइड किया कि ठीक है चलो आई विल टेक द कम्युनिकेशन साइड, आई विल टेक द बिजनेस साइड। अर्नव करता था अपना उस टाइम पे कि कैसे जो यूजर है, एंड यूजर, उसको कैसे, उसकी क्या नीड्स है उन्हें समझना, उनसे बात करना, एंड हम जो भी बिल्ड कर रहे हैं सोच रहे हैं वो क्या यूजर चाह भी रहा है नहीं चाह रहा है, तो उसको फिर डिजाइन करता था सत्यम कि ठीक है ये आइडिया है, ये आइडिया वैलिडेटेड है मार्केट में, अब इसको बिल्ड करने का ये दिखेगा कैसे, चलेगा कैसे, तब वो सत्यम हैंडल करता था। तो फिर जो हम पहले जो तीन सिमिलर हमारे वो थे क्राइटेरियाज, अब वो धीरे डिवाइड होने लगे थे कि एवरी पर्सन हैंडल्स देयर ओन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड एक दूसरे काम में इंटरफियर नहीं बट इंटरलिंक्ड रहता था पूरा। हाँ एंड तो बेसिकली यही, हाँ सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक पॉइंट है तो वो यही है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट प्लेस एंड एज इज नॉट, मतलब ऐसा मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा यंग थे इसलिए हम लोग सक्सेसफुल नहीं है अभी तक, या फिर हम लोग अभी सक्सेसफुल हैं भी तो भी इसलिए क्योंकि हम यंग हैं। बट यही है कि तुम जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो एंड स्कूल इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि हमारे हम साथ जितना कहना है कि स्कूल में टाइम नहीं है, कॉलेज में टाइम नहीं है, एक्चुअल टाइम इसी पीरियड में है, बिकॉज वंस यू गेट ऑन समवन एल्सेस पेरोल तो फिर योर टाइम डायरेक्टली बिकम्स कोरिलेटेड टू देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। See, अभी हम अपने ही टाइमलाइन पे हैं, अपने हिसाब से काम अभी ही कर सकते हैं मेन, ये जो कर क्योंकि सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेजर फैक्टर है वो है रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना है, एंड रिस्क टेकिंग फैक्टर सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही होता है क्योंकि हायर लेवल, हाँ सी एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेजर फैक्टर है वो यही है कि रिस्क फैक्टर कितना है, एंड स्कूल कॉलेज में रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं करने, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर पे पैसे देने हैं, या फिर मेरे को एक फैमिली का ध्यान रखना है। एट दिस एज मतलब द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस आर टिल आवर एजुकेशन ही, तो उसके अलावा वी डोंट हैव एनी लायबिलिटीज टू फॉल बैक ऑन कि भाई भाई कमाना है, घर चलाना है, एवरीथिंग, तो हम अभी रिस्क ले सकते हैं चाहे फेल होने का ही सही। तो दैट इज व्हाई स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट अर्ली, फेल, ट्राई, बिल्ड, फेल, दैट्स हाउ यू लर्न ना। हो सकता है तुम डिस्कवर करो जिस फील्ड में तुम इमेजिन कर रहे थे कि भाई मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, वो हो सकता है इट्स नॉट योर, मतलब वही है ना, जब तुम रिजेक्शन फील करते हो तुम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुद के बारे में सोच रहे हो। वेरी सेल्फ अवेयर, हाँ, हाँ ये तुम तो self-aware कुणाल हो। सभी कहता है कि फेलियर एंड रिजेक्शन इज द बेस्ट वे टू गेट सेल्फ अवेयर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मी था कि वंस वी बिल्ट आउट अ फाइनेंस वाला प्रोडक्ट, ठीक है, तो वैसे वी स्टार्टेड इन इक्विटीज फर्स्ट, इक्विटीज कुछ टाइम किया, ठीक है, इंटरेस्ट बैठा, बट उसमें लॉन्ग टर्म आपको देख नहीं पाया मैं, हमने थोड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एंटी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उसमें लॉन्ग टर्म देख नहीं पाए समवेयर। बट ये था कि एट द कोर आवर इंटरेस्ट आई थिंक वाज कि बिल्ड करना है, कुछ भी है लेकिन अपना ही बिल्ड करना है, हमें अपनी कंपनी एंड स्टार्टअप्स बिल्ड करने हैं। तो ये था कि वॉट एवर वी डू इन विचएवर इंडस्ट्री इट शुड बी बिल्ड राइट फ्रॉम अस एंड बाय अस। तो दैट वाज अ वेरी सेल्फ अवेयरनेस का पॉइंट ऐसे मिल रहे। तो हाँ, सो इससे मुझे पॉइंट याद आया कि आज जब हम ई-सेट की लॉन्च कर रहे थे तो उसमें हमने एक क्वेश्चन, मतलब सो वन ऑफ द पैनलिस्ट सेट की मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है यूथ के साथ जब वो स्टार्टअप्स बिल्ड करने निकलते हैं, कि वो स्टार्टअप्स बिल्ड करने निकलते हैं क्योंकि उन्हें बस ये है कि बस जाना है, स्टार्टअप बिल्ड करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना, लोग वो फिगर आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक ऐसे एक फेक उसमें वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि बस हमें तो स्टार्टअप बिल्ड करना है, हम खुद से प्रॉब्लम्स बनाने लग जाते हैं। बट द मेन पार्ट अबाउट स्टार्टअप्स इज कि तुम्हें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठा के उसके सॉल्यूशंस देखने। वही कि मतलब you cannot create imaginary problems then get an imaginary solution for them. The problem should already exist in the market somewhere hidden but should exist and have to kind of find that. And it can be one of the problems that you are facing. कि हो सकता है कि आज अगर अब जैसे हमने ये प्रॉब्लम स्टार्ट इसीलिए करी थी, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन वो स्टार्ट ही इसलिए हुआ था क्योंकि एक दिन मेरे को कोई प्रॉब्लम आई और मैंने निरांश को फोन करके बोला कि भाई ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को। फिर उसके बाद हमने कहा चल सोल्यूशन नहीं मिल रहा, बना लेते हैं। बट वी वांट द राइट गाइज टू बिल्ड दैट सोल्यूशन, क्योंकि हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी, एंड दैट्स व्हाई वी स्टॉप। बट हो सकता है कि अगर हम अभी तक उसमें लगे होते तो हम कुछ ना कुछ कर लेते, बट ये था कि कहीं ना कहीं हमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। मतलब a very interesting theory or a fact I was told by a VC once was कि there are like two kinds of people, right? A specialist and a generalist. A specialist is someone who specializes in a specific work domain. मान लो if I'm a coder, so I'm a very good coder, I'm very good at JavaScript. If I'm a designer, I'm very good at Figma. तो उसमें कोई और मुझसे compete नहीं कर सकता.
that's being a specialist, and a generalist is someone जो हर एलिमेंट को बेसिक नॉलेज रखे एंड टीम मैनेज करना सीखता हो. तो बीइंग अ जनरलिस्ट, टू ग्रो यू हैव टू हैव लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट बिकम अ गुड जनरलिस्ट, अ वेरी गुड CEO, वेरी गुड C-level पोजीशन गाय if you've not lived through life, if you've not failed, if you've not succeeded. But a specialist can be on their own. If I'm, let's say, a very good JavaScript coder, right? So I'll just keep coding, I'll keep building, I'll keep doing it. So knowledge is not time bound, right? For a specialist, knowledge is not time bound, but for a generalist, knowledge and experience comes through time. तो ये बहुत important factor है, मेरे ख्याल से हम miss करते हैं शुरू से. But then we learn कि ठीक है, we'll just keep on building what we are. We'll talk to the customers, we'll talk to the users, we'll fail again, but keep on building on that. हाँ, so coming back to the main point, मतलब मेरा जो main conclusion है इससे यही है कि problem with the youth is कि उन्हें बहुत fancy world तो दिख जाता है, क्योंकि उन्हें बताते भी वही है ना. अगर अब मैं आज बात करूँ कि जितने भी पैनलिस्ट थे, तो आज मेरे को पहली बार मैंने सुना किसी को ये बोलते हुए कि स्टार्टअप्स आर नॉट इजी. वरना जनरली तू किसी को भी सुनेगा तो सब लोग ये बोलते हैं इफ आई कैन डू इट इवन यू कैन डू इट, बट वो सच नहीं है. एवरीवन कैन नॉट डू इट, क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है उसके लिए. क्योंकि जब मेरे को याद है कि पहला रिजेक्शन जो मीटिंग का था उसमें था कि नीलांश लेट गया था, मतलब ऐसे बेड पे पीछे आके लेट गया था, उसका कोई रिएक्शन नहीं था आधे घंटे तक. उसका मेरे को याद है कि हमारी एक ऑफलाइन मीटिंग थी जिसमें नीलांश को रगड़ दिया था पूरा. एंड दैट गाय वाज लाइक worth $300 million. He was one of the initial उसको पद्मश्री मिला हुआ था. He was in the vice chairman suite and कौन सा होटल था वो? हाँ, तो लीला का he was the VVIP guest लीला का. So एक फ्लोर की एक लाउंज पूरी उसकी थी एंड हम उसकी लाउंज में वापस उससे मिलने गए. एंड द गाय वाज वेरी सिंपल, शॉर्ट्स शर्ट में आराम टी-शर्ट पहन रखी थी, बॉक्सर टाइप शॉर्ट्स थे. It's okay, you don't have to dox that guy. हाँ, तो मतलब उस बंदे ने इतनी मतलब huge respect for him. Huge respect, and that guy was so realistic. मतलब वो ऐसा था कि वो मतलब On point feedback. एकदम on point. मतलब nothing sugar coated, everything right to the हम जितने भी VCs वगैरह से मिलते हैं उनका इन जनरल जो एक वो आंसर रहता है ना, अगर उनको नहीं भी पसंद आइडिया है तो उनको लगता है नहीं you guys are very young, keep working on it, let's circle back and keep us updated and we'll work together again sometime. हाँ, and it's very good that you are working at such a young age and cheers to all that and shit. But वो बंदा इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि उसने हमें बताया. मतलब somewhere we were lacking real constructive criticism. हाँ, but उस दिन के बाद हमें हो गया कि shit यार, मतलब हमें तो अलग ही लग रहा था खुद के बारे में. भाई हम तो कौन से नीलांश थोड़ा डिप्रेशन वाले स्टेज में चला गया था, 1 घंटे तक वो कुछ नहीं बोला. But that was काफी ऐसे eye opening सर, काफी they called us out for every single bullshit point we made. तो मतलब it was काफी fun afterwards learning. My point being is कि ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं from your success. क्योंकि अगर आज के टाइम पे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम जिस दिन 2.5 करोड़ रुपए उठाने गए थे, किसी पागल इंसान ने हमें 2.5 करोड़ दे भी दिए होते, क्या करते हम, तो हो सकता है कि हम आज 5-6 करोड़ के कर्जे में डूबे हुए होते, हमें लोन चुकाने पड़ रहे होते. और लोन तो नहीं चुका रहे होते हमारे. लोन तो देख, इन्वेस्टमेंट का फायदा ये कि तुम्हें चुकाना कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक वो इमेज बन जाती है. और एक बार अगर तुमने ऐसा कुछ कर दिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो no one will touch you, no one will touch you ever for life. क्योंकि उनका very tough after getting any regulation की आई में. Then no matter how good you are, no matter how good your idea is, but फिर नहीं होता. Thanks for listening to the Mime Show and stay tuned for more episodes. राइटिंग कर यार, काम कर थोड़ा सा. काम नहीं करता भाई.